کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے سوسائٹی میں ایک چیز ایسی بھی ہے جو ہمیں تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور ہمارے ہی لوگ ہماری سوسائٹی ان کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں اور ان کو دیکھ کر انٹرٹین بھی ہوتے ہیں اور اتنا زیادہ پاگل ہو جاتے ہیں کہ اسے اپنی لائف میں اپلائی بھی کرنے لگتے ہیں۔ اس چیز نے ہم سے ہمارا کلچر، ہماری لینگویج، ہماری حیا سب کچھ چھین لیا ہے۔ وہ اتنا بڑا بزنس بن چکا ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ اب آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا کہ آخر ایسی کیا چیز ہے جو اتنا کچھ ڈسٹروائے بھی کر رہی ہے اور ہم بھی ڈسٹروائے ہو رہے ہیں خوشی سے۔ آپ اپنے مائنڈ کو زیادہ کنفیوز نہ کریں، وہ چیز ہے ہمارے ڈراماز، سیریل اور سیزنز۔ ابھی آپ کو شاید یہی لگ رہا ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور ہمیں بھی یہی لگا تھا اس ٹاپک کی ڈاکومنٹری کی چوز میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جب ہماری ٹیم نے اس پر ریسرچ کی تو ہمیں اتنا کچھ پتا چلا جسے ہم چاہتے تھے کہ ہم آپ کو بھی دکھائیں۔ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم ڈراماز کی ہسٹری کے آخر اسٹارٹ کیسے اور کہاں سے ہوئے، دین آج کے ٹائم میں یہ کس طرح ہماری سوسائٹی کو ڈسٹروائے کیے جا رہے ہیں، اور کیسے یہ ڈراماز ایک بہت بڑا ذریعہ بن گئے ہیں پیسہ ارن کرنے کا، کہ جو بھی کوئی نیو ڈرامہ آتا ہے ریکارڈ پہ ریکارڈ سیٹ کرتا ہے پیسہ کمانے کے معاملے میں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہ کیسے اس کے ذریعے ہماری پوری کی پوری جنریشن، چلڈرن سے لے کر ینگ اور ینگ سے لے کر اولڈ ایج کے لوگوں کے برینز کو واش کر کے ریلیشنز اور ہماری سوچ کے ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے۔ سو ہمارے ساتھ رہیں آج کی شوکنگ اور ٹروتھ بیسڈ ڈاکومنٹری میں۔ آور چینل پریزنٹس دی انسین سائڈ آف پاکستانی ڈراماز۔ ملاحظہ فرمائیے، پرانے وقتوں کی عورتیں نہانے کے بعد بال کیسے بنایا کرتی ہیں؟ یا نہیں، یہ تو کیفیات آتی جاتی رہتی، گرمی سردی، خوشی خوشحالی، سختی نرمی، یہ کیفیتیں ہیں، اس پر توجہ نہیں دینی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سرچ لائٹ لے کر مخلوق خدا کی رہنمائی کی جائے۔ سرچ لائٹ؟ اور یہ سرچ لائٹ سائنس کو سمجھے بغیر ہاتھ نہیں آئے گی۔ او بھائی جان، کوانٹم تھیوری کو جانے بغیر اور فوٹان کی کیفیت سمجھے بنا حضرت غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اسرار کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ جب مقام توحید پر پہنچتا ہے تو نہ موحد رہتا ہے، نہ توحید، نہ واحد، نہ بسیار، نہ عابد، نہ معبود، نہ ہستی، نہ نیستی، نہ صفت، نہ موصوف، نہ ظاہر، نہ باطن، نہ منزل، نہ مقام، نہ کفر، نہ اسلام، نہ کافر، نہ مسلمان۔ Oh bhai Jaan, at subatomic level matter does not exist with certainty, but rather shows tendencies to exist. This is why particles can be waves at the same time. پیپر ہم سن کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ چلے جائیں گے۔ میں نے تو سنا تھا ساس ماں کا روپ اور ماشاء اللہ سے آپ اچھی ماں بن ہی نہیں پائی، اچھی ساس کیا بنوں؟ امی کیا ہوا ہے؟ سب کیوں کھڑے ہیں؟ کیا لوگ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ کون ہے یہ؟ کدھر ہے؟ امی آخر کیسے ڈراماز ہماری سوسائٹی کی تباہی کا ذریعہ بن رہے ہیں، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن پھر اس کی ہسٹری دیکھنی ہوگی۔ سو واٹ از ڈراما؟ ڈراما ایک عربک زبان کا ورڈ ہے جس کے اردو میں مطلب ہے تماشا، ہندی میں ناٹک اور انگلش میں سیریلز۔ تو اس کی ریئل ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسا ماحول بنانا جس کا حقیقت سے کوئی ریلیشن نہ ہو اور اس کا پرپز جسٹ لوگوں کو مورل یعنی سبق دینا ہو۔ اب آئیے ذرا ان ڈراماز کی ہسٹری دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں وقت میں پیچھے جانا ہوگا۔ جب بادشاہوں کے زمانے ہوا کرتے تھے تو ایک قبیلے کو یہ ذمہ داری دی جاتی تھی کہ وہ 3 سے 4 دن میں بادشاہ کے لیے ایک ایسا ڈرامہ مینز تب اسے منورنجن بولتے تھے پیش کرے۔ اس وقت کے ڈرامہ کو وہ 3 دن میں تیار کر کے اپنے ڈرامہ کے ذریعے لوگوں کو میسج دیتے تھے اور بادشاہ سے ریوارڈ حاصل کرتے تھے۔ جب برٹشرز آئے اور انہوں نے ہمیں غلام بنا لیا تو اسی ڈرامہ کی وجہ سے لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگایا گیا اور ان میں آزادی کی تڑپ پیدا کی گئی۔ جب اگین ہم انگریزوں سے آزاد ہوئے تو پہلے کے ڈراماز لائیو سٹیج پر پرفارم کیے جاتے تھے، لیکن پھر 1990s میں ٹیلی ویژن ہر 2 میں سے 1 گھر میں آ گیا۔ پاکستان کا فرسٹ چینل لانچ ہوا جس کا نیم تھا PTV، پاکستان ٹیلی ویژن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں، اس شہروں کے شہر میں، اس کالجوں کے شہر میں، اس باغوں کے شہر میں، اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے۔ اس چینل پر ریلیجیس تھنگ دکھائی جاتی تھی، محفل مشاعرہ لگایا جاتا تھا۔ تشریف لاتے ہیں جناب افتخار عارف۔ سخن پہ آپ
खुदा की रजा से आती है, सुखन पे आप खुदा की रजा से आती है, मदीनो नजफो करबला से आती है, सुभान अल्लाह। और न्यूज़ चलाई जाती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने बैन-ए-सूबाई राब्ता कमेटी के मशवरे से फैसला किया है कि कौमी मरदमशुमारी मार्च में कराई जाएगी। कमेटी ने जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी, गंदम के दरामद और मुख्तलिफ शोबों में बैन-ए-सूबाई राब्ते को मजीद मौसर बनाने के बारे में अहम फैसले किए। जो कि सब मेंस करते थे। एवरीथिंग इज डूइंग बाय मैन। सब वुमेन्स पर्दे में रहकर और पर्देदार औरत से ही बात करती थी और बहुत कुछ सीखने को मिलता। अब ये गवर्नमेंट के चैनल था तो इस पर ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन 1993 में पाकिस्तान का फर्स्ट प्राइवेट चैनल लॉन्च हुआ जिसका नाम था NTM, नेशनल टेलीविजन मीडिया। ये एक प्राइवेट चैनल था जिसमें हिंदू, क्रिश्चियन और मजहब के लोगों के तरीकों को कॉपी करके बढ़ाकर दिखाया गया था, जिसे हमारे ही लोगों ने बहुत पसंद किया। यहाँ से स्टार्ट होता है डिस्ट्रॉइंग का ये ट्रैप और साथ ही साथ बिजनेस का मॉडल भी इन ड्रामाज इंडस्ट्रीज का। जब ये ट्रैप स्टार्ट हुआ तो ज़्यादा लोग इसके जाल में नहीं फंसे, लेकिन इस इंडस्ट्री ने आहिस्ता आहिस्ता हमारे माइंड को डिमोनेटाइज करना स्टार्ट कर दिया। 2001 के बाद इन प्राइवेट चैनल्स में और भी नेम ऐड हो गए। जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा चैनल्स होंगे तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, तो इन ड्रामाज वालों ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी हद को ही पार करना स्टार्ट कर दिया। जहाँ पहले के ड्रामाज में सिर्फ मेल को कास्ट किया जाता था और औरतों को पर्दे में दिखाया जाता था, वहीं अब इन चैनल्स पे बेहयाई के साथ साथ ऐसी औरतों को बेपर्दा किया, इसी तरह के गलत कैरेक्टर करवाए जो कि आज तक चल रहे हैं। और अब इसका क्रेज इतना बढ़ गया है कि इन ड्रामाज का नेम बच्चे से लेकर बड़े की जुबान पर आ चुका है। ड्रामाज ने हमारे बहुत से रिलेशंस को खराब किया है, जिनमें से सबसे पहले रिलेशन आता है सास और बहू का। सास और बहू का एक बहुत ही अच्छा रिश्ता होता था इन ड्रामाज आने से पहले। बहू अपनी सास को अपनी माँ समझती थी और उसकी बहुत केयर भी करती थी, लेकिन आजकल 100 में से 98% ड्रामाज में इस रिश्ते को इतना बुरा समझा जाता है कि आपकी सोच। तकरीबन हर ही ड्रामे में कभी ये दिखाया जाता है कि सास गलत है और कभी ये दिखाया जाता है कि बहू गलत है। अब आपका सवाल होगा, ये तो हकीकत है, ये तो हर घर में हो रहा है, लेकिन नहीं, ये माइंडसेट बनाने में इन्हें ड्रामाज का हाथ है। इसकी एग्जांपल कुछ ये है कि अगर हम रात को कुछ पढ़कर सोएं, कोई बुक या कोई स्टोरी, तो हमें ज्यादातर ड्रीम में वही आता है, यानी हमारा दिमाग उसे स्टोर कर लेता है और उस पर काम करता रहता है बैक एंड पे। अब आप जरा खुद सोचिए कि जब हम कोई ड्रामा देखें तो उसमें हमें बार बार ये दिखाया जाता है कि सास और बहू की लड़ाई होती रहती है, चाहे कुछ भी कर लो। देन हमें ऐसा लगता है हम तो इसे भूल गए हैं, वो तो एक जस्ट ड्रामा था, बट हमारा ब्रेन उसे स्टोर कर लेता है बैक एंड पे। और फिर हम जब किसी से भी सुनते हैं कि सास और बहू की लड़ाई हुई या अपने ही घर में देख लेते हैं, तो हमें लगता है कि ड्रामास तो सच दिखाते हैं, जैसा वो दिखाते हैं वैसा ही हो रहा है रियल लाइफ में भी। यही एक बहुत बड़ी वजह है कि आजकल बहुत से लोग ड्रामास देखते इसीलिए हैं कि उनको लगता है कि ये सच दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और है। पता नहीं ये लोग क्यों नहीं समझते कि ड्रामास के अंदर जो लोग हैं वो जस्ट एक करेक्टर कर रहे हैं और ये सारा स्क्रिप्टेड शो है। ये लोग आप ही की वजह से बहुत ज्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं, या सास और बहू को लड़वा देते हैं और घर खुद जाकर सुकून से अपनी लाइफ में एंजॉय करते हैं। यही वजह है कि आजकल सास और बहू के इतने प्यारे रिश्ते में आग लग चुकी है। जिस भी लड़की की शादी हो रही होती है, अगर वो एजुकेटेड है तो बोलती है मुझे सेपरेट घर चाहिए, और अगर रिश्तेदार है तो अपनी सास से बहुत कुछ छुपाती है। इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा बहू गलत होती है, कई जगह पर सास भी गलत होती है। आज के ड्रामास तो हर एज के लोग देख रहे होते हैं और आजकल तकरीबन सभी के ब्रेन वॉश हैं। जब एक सास ड्रामा में ये देखती है कि वो लड़की उसके बेटे को उससे दूर कर रही है, तो वो रियल लाइफ में भी अपनी बहू पर सख्ती करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल में मिलती है ज़ारा का केस। कैसे उसकी सास ने उसको बेरहमी से कत्ल कर दिया जस्ट इसीलिए कि वो उसको पसंद नहीं करती। What the hell is going on in our society? ये सब इन्हीं विजुअलिस्टिक ड्रामास की वजह से हो रहा है। सेकंड नंबर पर आते हैं हमारे ज्वाइंट फैमिली यानी रिश्तेदार। ड्रामास में बार बार ये दिखाया जाता है कि जो रिश्तेदार ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं वो एक दूसरे के बारे में अच्छा नहीं सोचते, वो लड़ाई करवाते हैं और सबके दरमियान बहुत सारे मसाइल पैदा करते हैं। अब आजकल की लाइफ में यही चीज़ अप्लाई हो रही है, आपके सामने है, लोग एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते, सबको ज्वाइंट फैमिली से तंगी होने लगी है। इसी तरह इन ड्रामाज ने हमें हमारे रिश्तेदारों से भी दूर कर दिया है। और थर्ड द मोस्ट नंबर पर आते हैं लव ट्रायंगल्स। आजकल तो ये लव ट्रायंगल्स इतने आम कर दिए गए हैं कि इनके बगैर कोई ड्रामा कंप्लीट ही नहीं होता। ऐसा कोई ड्रामा बनाया ही नहीं जाता जिसमें कोई लव स्टोरी ही ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स सपोज एक ड्रामा है जिसमें एक 16 साल की गर्ल है और एक 18 साल का बॉय। उस ड्रामे में उन दोनों का लव ट्रायंगल दिखाया जाता है। अब आप मुझे जरा बताएं, ये सब दिखाकर हम इस उम्र के गर्ल्स और बॉयज को क्या लेसन दे रहे हैं? नॉर्मली गर्ल्स और बॉयज इसी एज में अडल्ट होते हैं, बजाय उनको दीन
दीनों दुनिया सिखाने के हम उनको मोहब्बत, इश्क और पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हैं। आखिर क्या हो गया है हमारी सोसाइटी को? हम मुस्लिम्स हैं, जो काम ड्रामाज में एक्टर कर रहे हैं वो जस्ट एक करेक्टर है, रियल लाइफ में उनका कुछ मतलब नहीं। वो तो जस्ट अपनी जॉब कर रहे हैं और पैसे अर्न करके अपनी लाइफ में खुश हैं। मेरा आप लोगों से सवाल है, जो लोग ड्रामा देखते हैं, जो अपना टाइम ज़ाया करके उनके सीरियल्स को देखते हैं, उनको क्या मिलता है सिवाय ब्रेन वॉश के? हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे इन ड्रामाज ने हमारी पूरी की पूरी जनरेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। सबसे पहले आते हैं हमारे चिल्ड्रंस। इसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा अपने घर वालों के साथ बैठकर कोई भी ड्रामा या कोई सीरियल देखता है। उस ड्रामा में ये दिखाया जाता है कि अगर बच्चा अपने पेरेंट्स से किसी भी चीज़ की मांग करता है तो वो उसे दिला देते हैं। उस ड्रामे में यही दिखाते हैं कि इसी को प्यार कहते हैं। तो अब ये बात बच्चे के माइंड में स्टोर हो जाती है। जब वो अपने पेरेंट्स से किसी भी चीज़ की मांग करता है, मिडिल क्लास होने की वजह से उसके पेरेंट्स उसको वो चीज़ नहीं दिला पाते, तो उस बच्चे के माइंड में पहले से यही बात स्टोर हुई होती है। तो वो उनको बोल देता है कि आप लोग तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। और आखिर में यही बच्चे बड़े होकर बोलते हैं अपने पेरेंट्स को कि आपने सारी जिंदगी हमारे लिए किया ही क्या है। जनरेशन में अगले नंबर पर आते हैं हमारे यूथ, जो कि हमारा फ्यूचर है। जब आज का एक भी एडल्ट बॉय ड्रामास देखता है, लाइक लव ट्रायंगल्स वाले ड्रामास, तो वो जब इस टाइप के ड्रामास देखते हैं तो उनका एक माइंडसेट बन जाता है कि मोहब्बत किसी गर्ल से होगी, और वो भी इसी एज में जब कोई गर्ल उन्हें पसंद करती होगी, तभी वो कामयाब हैं और प्रॉपर लाइफ गुजार रहे हैं, वरना वो फजूल लाइफ गुजार रहे हैं। जब वो ये सब देखेंगे तो क्या लगता है उनके दिल में ये सब करने की ख्वाहिश नहीं जागेगी? ऑफ कोर्स जागेगी। लास्ट पर आती है हमारी ओल्ड जनरेशन। आजकल बहुत से ड्रामाज में दिखाया जाता है कि औलाद बड़ी हो जाती है तो वो अपने माँ बाप की एक नहीं सुनती, तो पेरेंट्स इसी वजह से सख्त मिजाजी अपनाते हैं और अपने बच्चों के साथ सख्ती से बिहेव करते हैं, जिसका रिएक्शन ये होता है कि बच्चे जिद्दी और अपने बड़ों को ही एनिमी समझने लग जाते हैं। और इस तरह हमारी पूरी की पूरी जनरेशन ही तबाह हो रही है, छोटे से लेकर बड़े तक। अब इसका इल्जाम किस पर लगाया जा रहा है? एक दूसरे पर। कोई किसी को बोलता है तुम गलत हो, कोई कहता है तुम गलत हो, कोई कहता है मेरी किस्मत खराब है, कोई कहता है मेरे साथ ऐसा ही लिखा गया था। लेकिन नहीं, ये सारा कुछ रियल में तो इन ड्रामास की वजह से हो रहा है, जो बैकएंड पे आपके माइंड को इफेक्ट करते हैं। जैसा कि आप ड्रामास में देखने हैं, रियल लाइफ में भी ऐसे करने लग जाते हैं। इसके बाद इन ड्रामाज ने हमारे पूरे के पूरे दीन के माहौल को ही तबाह कर दिया है। हमारे पूरे के पूरे इस्लाम को ही गंदा कर रहे हैं सिर्फ पैसों की खातिर। यहाँ तक कि ड्रामाज में नकली जनाजे तक दिखा दिए जाते हैं। डिवोर्स, जिसे अल्लाह पाक ने हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा अमल करार दिया है, उसे आम सी बात बना दिया गया है। जिन नामहरम रिश्तों से हमारे दीन इस्लाम ने पर्दा करने का हुक्म दिया है, जैसे कि चाचू की बेटी या मामू की बेटी, इन ड्रामाज में इन्हीं के साथ ज़्यादा मोहब्बत दिखाई जाती है। अब ज़रा आप मुझे बताएं, क्या एक बच्ची जो भी अडल्ट भी नहीं हुई, वो जब ऐसे ड्रामे देखेगी, ऐसा कंटेंट कंज्यूम करेगी, क्या वो इन जैसी नहीं बनेगी? इसके अलावा बहुत बड़ी बात यह है कि इन ड्रामाज में ये दिखाया जाता है कि अगर एक लड़की नमाज पढ़ती है और प्रॉपर पर्दा करती है तो उस लड़की का कोई नहीं होता, वो जुल्म सहती है और बहुत मजलूम होती है। दूसरी तरफ एक लड़की जो बेपर्दा होती है और एक कंपनी में जॉब करती है और मर्दों से बात करती है, तो वो बहुत मॉडर्न लड़की है और हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है और उसकी इज्जत भी करता है। जिस भी लड़की के साथ जुल्म होता है वो नमाजी होती है, और जो तरक्की करती है वो बेपर्दा। आखिर ये क्या दिखा रहे हैं हम अपनी बच्चियों को? ये किस किस्म की तालीम दे रहे हैं? दीन इस्लाम हमें ये तो नहीं सिखाता, और फिर हम खुद को मुस्लिम भी कहते हैं। जब ये बातें किसी ड्रामास के डायरेक्टर से पूछी जाएं तो वो कहते हैं हम तो वही कुछ दिखा रहे हैं जो हमारे सोसाइटी में हो रहा है। हम इनसे पूछते हैं कि कौन कहता है कि आपको हमें वो दिखाओ कि जो कुछ हो रहा है, और अगर एक एक्टर से पूछो तो वो कहते हैं वी आर जस्ट डूइंग आवर जॉब। अब इनको कौन बताए कि जिस कैरेक्टर को निभाकर जी आराम से घर जाकर रेस्ट करते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर रहे हैं, उसका हमारी सोसाइटी पर क्या असर पड़ता है? कितनी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि जब वो आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखते हैं और खुद को लाइफस्टाइल को देखकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और एक दूसरे से गिले शिकवे करने लग जाते हैं और हर किसी को बुरा भला बोलने लग जाते हैं। इनको कौन बताए कि इनके किए गए एक कैरेक्टर से किसी की लाइफ पर कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है? इसकी मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एक लड़का जो अभी तक अडल्ट भी नहीं हुआ, उसको किसी ड्रामे का एक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है और वो उस कैरेक्टर की तरह बनने की विश करता है। उस ड्रामे का कैरेक्टर स्वीट यानी मीठा नहीं खाता, तो वो यंग बॉय भी सारी जिंदगी मीठा नहीं खाता, यहाँ तक कि जब उसकी शादी की एज हो जाती है तो उसके पेरेंट्स को पता चलता है कि इसको शुगर की कमी हो गई है। जब डॉक्टर उसे बोलता है कि मीठा खाओ तो वो चाह कर भी नहीं खा पाता, क्योंकि उसे इतने सालों से कभी मीठा खाया ही नहीं। अब आप मुझे बताएं कौन है इस सब का जिम्मेदार? उस स्टार से पूछो तो वो तो ये कहेगा कि मैं तो जस्ट एक कैरेक्टर कर रहा था, मुझे क्या पता ये हो जाएगा। अब आप बताएं किसका कसूर है? हम बताते हैं कसूर सारा का सारा इन्हीं ड्रामास का है और हमारा भी। हम खुद इन ड्रामास को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने लग जाते हैं और इन्हीं को हकीकत मानने लग जाते हैं। बस जो वो दिखा रहे हैं हम आंख बंद करके मानते जाते हैं और अप्लाई करते जाते हैं।
हम इनके इस गलत कंटेंट को समझ नहीं पाते और इनके बिछाए हुए ट्रैप में फंसते जाते हैं। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि आप ड्रामास देखना ही छोड़ दें, इनको जस्ट एज एन एंटरटेनमेंट देखें। बस हमें आपको ये समझाना था कि इसके कंटेंट का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है हमारे ब्रेन पर, हम पर, हमारे रिलेशनशिप्स पर और हमारी सोसाइटी पर। और इन ड्रामास को एक ड्रामा या तमाशे की तरह देखना चाहिए, ना कि इन्हें अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर देना चाहिए। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। समझ जाइए और समझदार बनिए। फॉर योर लव, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में, जो कि होने वाली है वर्ल्ड के बिगेस्ट ट्रैप पर। होप सो आपको भी इंतजार रहेगा। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।